Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना हो कृपया अपना हैंड रेस करें और हम लोग स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, तो अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट प्रे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और यस, लेट्स स्टार्ट श्रीमद् भागवतम। जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। लेट्स कंटिन्यू। यस, बहुत सारी बातें बाद में थोड़ी
पहले कंटिन्यू करते हैं। श्लोक नंबर 18 से स्टार्ट होना था ना? यस, 18 ही है ना? ओके, आई वुड अज्यूम 18 ही है। हरे कृष्णा गुरु जी। जी गुरु जी। ओके, वेरी गुड। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट एंड वी वुड कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 18। भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, किंतु वे कर्ता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं, किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, आगे इसका तात्पर्य पढ़े उससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना? वो इम्पोर्टेंट बात सभी को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। देखिए, कभी भी क्लास होती है ना, कभी भी हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो एक चीज बार बार रिपीट की जाती है, जितनी जिज्ञासा है पूछिए। अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग तैयार है। मालूम है क्या, कभी कभी है ना, एकदम सरल सरल चीज नहीं समझ में आता है, ठीक है, पूछ लिया कीजिए, पूछ लीजिए, चैट में पूछ लीजिए, बाकी डिवोटीज आंसर कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, ये सारी बातें हैं, तो वो, या फिर आपका पूरा भिन्न प्रश्न है, भिन्न जिज्ञासा है, तो वो लास्ट के लिए है ना। नहीं तो कभी भी जिज्ञासाओं के लिए कभी ऐसा नहीं बोला कि मत पूछिए। जैसे यहाँ पे अन्य, मैं कल भी सोच रहा था, अन्यो, अन्य, अन्योन्य, है ना, ये शब्द लिखा हुआ, उसका अर्थ है अन्य अन्य, है ना, अन्य अन्य। अब आप सोचिएगा, पता नहीं क्या क्या भाषा में बात होती है, समझ में नहीं आता, बड़ा डिफिकल्ट है। तो एक्चुअली में डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अन्य अन्य हम लोग नहीं बोलते हैं क्या। अब उसी को क्या, एडिशन, दोनों शब्द का एडिशन क्या बोलते हैं, संयुक्त, संयुक्त शब्द, है ना। एक निकाल दे अन्य अन्य, अन्योन्य, तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है ना? नहीं समझ में आ रहा, उसलिए दिक्कत लगता है ना? एक और यहाँ पे शब्द है अचिंतनीय। तो ये भी बड़ा सिंपल है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट शब्द नहीं है। अचिंतनीय, चिंतनीय, चिंतनीय मतलब समझ आने वाली या चिंता करने वाली, चिंता कर सकते हैं। अचिंतनीय, जो चिंतन के परे हो, जो समझ के परे हो, जो हम दिमाग से, बुद्धि से समझ ना पाए, है ना। कोई डिफिकल्ट है क्या? अब आप बताइए, फिर से एक और बार पढ़िए, राघव प्रभु जी एक और बार पढ़िएगा, उसके बाद फिर मीनिंग पढ़ेंगे। देखिए प्लीज समझिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो हम शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम लोग इतना सरल रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और डिफिकल्ट लग रहा है तो फिर बड़ा विकट समस्या है, क्योंकि यहाँ से तो एकदम सरल बात बताई जा रही है, आपको डिफिकल्ट लग रही है, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तब भी आप बारंबार पूछा कीजिए। ये मत कंक्लूजन निकाल लिया कीजिए मेरे को नहीं समझ में आएगा या मेरे को नहीं समझ आता, है ना। समझने का प्रयास कीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो कितना भी समझ लीजिए, कितना भी समझ लीजिए, आपकी समझ के परे होगी। जैसे श्रीमती राधा रानी कृष्णा की हलादनी शक्ति, हलाद देने वाली शक्ति, और कृष्णा से भी ज्यादा प्रेम श्रीमती राधा रानी महारानी करती है। इसको कितना ही समझने का प्रयास कर लीजिए, जन्म जन्मांतर लगा लीजिए, समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। हरे कृष्णा। तो चलिए राघव प्रभु जी फिर से एक और बार रीड करने का प्रयास, रीड कीजिए, है ना। राघव प्रभु जी ने ही रीड किया था ना, फिर से पूरा रीड कीजिए, और अनुवाद भी इसका रीड करना है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवान अपनी अचिंत्य काल रूप परम शक्ति से प्रकृति के तीनों गुणों में अन्योन्य क्रिया उत्पन्न करते हैं, जिससे नाना प्रकार की शक्तियां प्रकट होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे कार्यशील हैं, किंतु वे कर्ता नहीं हैं। वे संहार तो करते हैं, किंतु संहार करता नहीं है। अतः यह माना जाता है कि केवल उनकी अचिंतनीय शक्ति से सब कुछ घट रहा है। तात्पर्य: दुर्विभाव्य शब्द का अर्थ हमारे लघु मस्तिष्क द्वारा अकल्पनीय और
विभक्त वीर्य का अर्थ विभिन्न शक्तियों में विभाजित है। भौतिक जगत में सृजनात्मक शक्तियों के प्राकट्य की यह सही विवेचना है। एक उदाहरण के द्वारा हम भगवान की कृपा को ठीक से समझ सकते हैं। शासन सत्ता को दयालु होना चाहिए, किंतु कभी-कभी शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगानी पड़ती है और जो विद्रोह करते हैं उन्हें दंड दिया जाता है। इसी प्रकार भगवान सदैव दयालु हैं तथा दिव्य गुणों से युक्त हैं, किंतु कुछ जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं। अपने प्रयत्न के फलस्वरूप वे अनेक भौतिक अंत क्रियाओं में फंस जाते हैं, किंतु यह तर्क देना ठीक नहीं होगा कि शक्ति भगवान से प्रकट होती है इसलिए वही करता है। पिछले श्लोक में निमित्त मात्रम शब्द इंगित करता है कि भगवान इस भौतिक जगत के कार्यकरण से सर्वथा पृथक रहते हैं, तो फिर सब कुछ कैसे चल रहा है? इसके लिए दुर्विभाव्य या अकल्पनीय शब्द प्रयुक्त हुआ है। हमारे छोटे से मस्तिष्क में इतनी शक्ति कहाँ की हम यह सब समझ सके। जब तक भगवान की शक्ति को अचिंत्य अथवा अकल्पनीय नहीं मान लिया जाता, तब तक किसी तरह की उन्नति कर पाना संभव नहीं है। जो शक्तियाँ कार्य करती हैं, वे श्री भगवान द्वारा ही चालू की जाती हैं, किंतु वे उनके कार्यकरण से सदैव पृथक अर्थात भिन्न रहते हैं। भौतिक प्रकृति की अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न नाना प्रकार की शक्तियाँ नानाविध योनियों तथा फलस्वरूप मिलने वाले सुख एवं दुख को उत्पन्न करती है। भगवान जिस प्रकार से कर्म करते हैं, उसकी सुंदर विवेचना विष्णु पुराण में मिलती है। अग्नि एक स्थान पर रहती है, किंतु उसकी गर्मी तथा प्रकाश भिन्न-भिन्न प्रकार से कार्य करते रहते हैं। दूसरा उदाहरण बिजली घर का है, जो एक स्थान पर स्थित होता है, किंतु उसकी शक्ति से नाना प्रकार की मशीनें चलती हैं। उत्पादन कभी भी शक्ति के मूल स्रोत से एक रूप नहीं होता, किंतु शक्ति का मूल स्रोत मुख्य कारण होने से उत्पादन से एक रूप है और साथ ही उससे पृथक भी। अतः ज्ञान का सही मार्ग भगवान चैतन्य का दर्शन अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। भौतिक जगत में भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन रूपों में अवतरित होते हैं और ये प्रकृति के तीनों गुणों का भार संभालते हैं। ब्रह्मा का ब्रह्मा का अवतार लेकर वे सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप में वे भरण करते हैं और शिव रूप में वे संहार भी करते हैं। किंतु इन तीनों के मूल स्रोत गर्भोदक्षाई विष्णु भौतिक प्रकृति के कार्य कारण से अपने को पृथक रखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कृष्णा हाँ, सभी के स्त्रोतकर्ता तो हैं, परंतु सभी से भिन्न भी है। आप ये कह के कि कृष्णा ही सभी के स्त्रोतकर्ता हैं, कृष्णा के कारण ही हो रहा है, ये गलत प्रकृति के प्रति समर्पित हो जाए। बोले कि गलत भी तो कृष्णा ने ही बनाया, तो गलत के प्रति समर्पित हो रहे हैं तो भी कृष्णा के ही प्रति समर्पित हो रहे हैं। ये तो कुतर्क है। कुछ तर्क होता है, कुछ कुतर्क होता है। कुतर्क लगने में तो तर्क जैसा ही लगता है, परंतु वो हमारे लाभ के लिए होता है नहीं, वो हमारे पतन के लिए होता है। कुतर्क का मतलब ही है ना, कुतर्क करके किसी का लाभ नहीं है। परंतु जैसे तर्क किया जाता है, जैसे लोग भक्ति करते हैं ना, उसी प्रकार से प्रिटेंडर भी ठीक उसी प्रकार से दिखते हैं, है ना। प्रिटेंडर जो होते हैं, जो भक्ति करने का दिखावा करते हैं, वो भी वैसे ही करते हैं, है ना। और प्रिटेंडर तो बहुत अच्छे से कॉपी करते हैं। जो चोर होता है वो सज्जन बनने का बहुत अच्छे से दिखावा करता है ना, पर वो चोर होता है, वो सज्जन नहीं होता, है ना। वो सज्जन बनने का दिखावा बहुत अच्छे से करता है, पर इसका अर्थ ये नहीं है वो सज्जन। हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, लास्ट में बताया गया कि
ब्रह्मा का अवतार लेकर सृष्टि करते हैं, है ना। पीछे ब्रह्मा लिखा होता है, तो ब्रह्मा का अवतार लेकर सृष्टि करते हैं। देखिए, ये सही भी है और नहीं भी। ये सही है, ब्रह्मा का अवतार लेकर सृष्टि करते हैं, ये सही है। तो ब्रह्मा जी कृष्णा है? नहीं, ये बात सही नहीं। भिन्नांश पूर्ण नहीं होता। इनफैक्ट कृष्णा तो एकदम क्लियरली, भगवत गीता में एकदम क्लियरली इस बात को बताते हैं कि हमको कृष्णा के दूसरे अवतारों को भी कृष्णा नहीं जानना चाहिए, है? कौन से चैप्टर में बताते हैं? कौन से चैप्टर में बताते हैं दूसरे अवतारों को हमको कृष्णा नहीं जानना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे अध्याय में बताते हैं। कोई एक एग्जांपल देगा? भगवत गीता में कृष्णा कहाँ बताते हैं कि दूसरे अवतारों को कृष्णा नहीं जानना चाहिए? यस, कोई एग्जांपल देंगे? यस, आपको पूछा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो मैं ये बोल रहा था कि कृष्णा कौन से अध्याय में ये बताते हैं कि मेरे किसी अवतार को मेरे बराबर ना जाने? कौन से अध्याय में बोलते हैं? कोई एक एग्जांपल देगा? आपको कोई पूछा जाए कि कौन से अवतार में बोलते हैं, आप क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है, आप जानते हैं हमको कृष्णा के अवतारों को कृष्णा नहीं जानना, हमको कृष्णा ही चाहिए। ठीक है, ओके। पर कैसे कैसे आप बताइएगा, ये बात कैसे बताइएगा? हाउ डू यू नो दैट? यस, कोई एग्जांपल देंगे? भगवत गीता में बहुत जगह बताया होगा, परंतु एक एग्जांपल, बहुत ही सरल और बहुत ही क्लियर एग्जांपल, यस, कोई देंगे? देंगे नहीं? विश्व रूप, जब कृष्णा विश्व रूप धारण करते हैं, है ना, तो अर्जुन डर जाते हैं। कृष्णा परमात्मा रूप भी वापस ग्रहण करते हैं, तो भी अर्जुन संतुष्ट नहीं होते। जब भगवान रूप वापस धारण करते हैं तो फिर अर्जुन संतुष्ट हो जाते हैं। तो साफ साफ बता रहे, ये कौन कर रहा है? अब कोई बोले कि ये तो अर्जुन घबरा रहे हैं ना, तो अर्जुन घबरा रहे हैं, भगवान थोड़ी ना बता रहे हैं कि हमको भगवान रूप में जानो। ऐसे तो श्लोक में एक जगह साफ साफ बोल दिया, परंतु इस एग्जाम्पल में तो साफ साफ नहीं बोल रहे। एक बात बताइए, अर्जुन को जो अनुभव हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? अगर सपोज कीजिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, आप घर में जाते हैं, अभी सपोज करें कोई भी ऑफिस से आ रहा हो, है ना, शाम तक रात तक कार्य कर रहा हो, और गली में पूरा अंधेरा, ठीक है, घर जाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो क्या हड़बड़ाते हैं? क्या डर लगता है? आश्चर्यचकित हो जाते हैं? होता है? नहीं होता ना? गली में पूरा अंधेरा था, परंतु अचानक घर जाकर के लाइट जला रहे हैं, तो नॉर्मल है, लाइट जलाएंगे तो रोशनी होनी चाहिए, हमको घबराहट नहीं होती है। परंतु ठीक अगर सपोज कीजिए सो रहे हैं हम, लाइट बंद करके सो रहे हैं, अचानक से लाइट जल जाए और आप देखें लाइट जल गई है, आप घबरा जाते हैं। सही है नहीं है? लाइट वही है, प्रकाश वही है। एक जगह आप घबरा गए और एक जगह आप स्वाभाविक रूप से घबराए नहीं, है ना? है? जब आप सूर्य को देखते हैं, हाँ? तो आपको जब देखते हैं ना, उससे पहले ही मालूम होता है हमारी आंखें तो चौंधिया जाएंगी, हमको दिखाई नहीं देगा। तो 1 मिनट बाद आपको दिखना बंद हो जाता है। सूर्य को एकाटक देखिए,
1 मिनट 2 मिनट बाद दिखना बंद हो जाएगा, एकदम काला काला हो जाएगा। स्वाभाविक है। परंतु अगर आपके सामने अचानक से सूर्य का प्रकाश कहीं से ला करके दे दें, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, हाँ ये अक्सर होता है, गाड़ी चलाते हैं ना, एक्सीडेंट होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है क्या, हाँ उसी लिए लिखा भी रहता है यूज डिपर एट नाइट, है ना, बस पे लिखा रहता है ना यूज डिपर एट नाइट, वही कारण है। क्या अचानक से आंख पे प्रकाश आ जाएगा, आप घबरा जाएंगे, गाड़ी इधर उधर चला देंगे, इसीलिए बोलते हैं डिपर, डिपर मतलब लाइट को नीचे रखने वाला है ना, एकदम आंख पे लाइट आ जाएगी तो घबरा जाएंगे, है ना, देखा है ना, लिखा हुआ है, बसों पे अक्सर लिखा रहता है यूज डिपर एट नाइट। हरे कृष्णा, यस, देखा है, हाँ, तो इसीलिए तो प्रकाश तो वही है, सूर्य को देखते हैं तो फिर भी देख लेते हैं, आंखें अंधेरी हो गई फिर भी आंखें, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा फिर भी देख रहे हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, मेरा बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। अर्जुन भगवत गीता में बताते हैं कि मुझे इस प्रकार का प्रकाश दिखाई दे रहा है जैसे हजारों सूर्य एक साथ जला दिए। अब अर्जुन बोल रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, परंतु अगर 1000 सूर्य एक बार में जला दिए गए, 1000 सूर्य, एक बात बताइए, हम एक ही सूर्य के प्रकाश से चकाचौंध हो जाते हैं, अर्जुन को ये 1000 सूर्य दिखाई कैसे दिए? अगर एक ही सूर्य को हम देख लें तो आंखें चकाचौंध हो जाएगी, फिर दिखाई नहीं देगा, आंखें काली हो जाती है ना, नहीं दिखता। ये अर्जुन को एक साथ 1000 सूर्य दिखाई कैसे दे दिए? दृष्टि देने वाले कौन थे? ये दृष्टि देने वाले कौन थे कि देख पाओगे? हैं? अब शुरू भी नहीं हुआ था तब भी बोले थे देख नहीं पाओगे, हम तुमको दृष्टि देते हैं तो देख लो, हैं? हम तुमको दृष्टि देते हैं, और दृष्टि देख लेने के बाद भी आंशिक रूप से देख पाए, घबरा गए। तो हमको सभी चीज को कृष्णा के संदर्भ में जानना चाहिए। कृष्णा के संदर्भ में नहीं जाने तो हमारा समय ना बर्बाद कर दिए। अभी जैसे क्लास ज्वाइन किए हैं और हम कृष्णा के बारे में जाने नहीं, कृष्णा के प्रेम के बारे में जाने नहीं, ये जाने नहीं कि हमको मूल रूप से तो भगवान के बारे में जानना है। हाँ, देखिए समझिए, जो भी बोले हमें श्रीमती राधा रानी महारानी के बारे में जानना है, वो पहले कृष्णा के बारे में जाने, तब श्रीमती राधा रानी महारानी के बारे में जान सकते हैं। एक्सेप्शन धाम में वास करने वाले, है ना? उनको ये पावर दिया गया, ऑथोरिटी दी गई है ना, वो जिस दृष्टिकोण से देखना चाहे देख सकते हैं। वो श्रीमती राधा रानी महारानी के संरक्षण में है। ऐसे कभी कोई बालक होता है ना और घर में पिता ही कमाते हैं, पहले के जमाने में तो यही होता था ना, और ऐसे अगर शुद्ध रूप से देखें तो उत्तरदायी के हिसाब से पिता का ही कार्य है धन कमाना, परंतु आजकल कुछ भी शुद्ध रूप से चलता नहीं है, इसीलिए माता का भी उत्तरदायी होता है। ठीक है, आजकल होता है, परंतु ठीक है, पहले के जमाने में तो यही होता था, पिता धन कमाए, माता घर का, घर में जो भी कार्य है वो करे। बहुत अच्छा। अगर सपोज कीजिए आज से 20-30 साल, 40 साल, 50 साल पहले वाला भाव रखें, अगर कोई भी, आप कोई बालक है ना, 10-12 साल का पुत्र है, पुत्री है, कोई संतान है, उसको कुछ लेना रहे, कुछ भी लेना रहे, कोई भी सामान लेना है ना, तो उसको अपने पिता को कन्विंस करना पड़ता था, पिता को समझाना रहता था कि मेरे को ये इस कार्य के लिए इतना धन चाहिए, इतना पैसे लगेंगे, इतना ये होगा, है ना, है ना? परंतु कभी कभी माता बोलती, परंतु कभी माता इस प्रकार से उल्हाने देने लग जाए कि मेरी पुत्र मेरी पुत्री को तो ये चाहिए ही चाहिए, तो पिता क्या करते, पिता झुक जाते थे, है ना, देखा है ना, सबने अपने परिवार में भी देखा है ना,
पिता झुक जाते हैं। माता अगर पक्ष लेकर के खड़ी हो जाए तो पिता झुक जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। आप बोल नहीं है तो चलिए बात मान लेते हैं। आम दिन अगर बात नहीं भी मानते तब भी मान जाते हैं। सही बात है ना? हाँ? हरे कृष्णा, सही है नहीं है? हाँ? माता ममता की मूरत होती है, ममता से भरी हुई होती है, प्रेम से भरी हुई होती है। तो अगर वो प्रेम का उल्हाना देने लग जाए तो उसके आगे कोई नियम, कोई कानून नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। श्रीमती राधा रानी महारानी प्रेम प्रदायिनी है, प्रेम की स्रोत वही है। वो अगर कृष्णा को कुछ बोल दे तो कुछ नियम नहीं चलता, सारा नियम को धरा रख दीजिए, एक साइड उठा करके रख दीजिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, किसी नियम का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है ना? नियम वही चलेगा जो श्रीमती राधा रानी महारानी, और किसी का नियम नहीं चलता। ठीक है, तो ये धाम में रहने वाले के लिए, और धाम में जैसे वृंदावन में रहने का अर्थ ये भी है कि हमेशा वृंदावन के बारे में चिंतन करना, या कृष्णा के बारे में चिंतन करना, सतता कृष्णा चिंतन करना। जब इस भाव में हो जाए तो उसके ऊपर कोई नियम नहीं चलता, कोई नियम नहीं चलता, है ना? हाँ, वृंदावन में रहने वाले के लिए भी आज भी चैतन्य चैतामृत में बात हो रही थी कि वृंदावन सबसे ऊपर, सारे धामों में भी सबसे ऊपर वृंदावन है। बात यहाँ तक पहुंची थी कि अगर कोई धाम का व्यक्ति हो, कोई भी धाम का व्यक्ति हो, और हमारा उनसे बात होता हो, अगर वो भौतिकता अपनी नहीं, उनके उनके हृदय में भौतिकता नहीं है, या भौतिकता अपनी प्रदर्शित नहीं कर रहा है ना, किसी भी कारण से भौतिकता प्रदर्शित नहीं कर रहा है, धाम में रहते हैं, भौतिकता प्रदर्शित नहीं कर रहे है ना, या भौतिकता उनके हृदय में है ही नहीं, निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, असंशय, अगर मात्र आप उनसे वार्तालाप कर लें, बात कर लें, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, आप बस उनसे बात कर लें, तो आप अपने भक्ति के स्तर में ऊंचे उठ जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ब्रजवासी से बस बात कर ले, अगर वो भौतिकता, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी हम भौतिक जगत के हैं, है ना, क्या होता है, अपनी भौतिकता लेकर के आते हैं। अगर भौतिकता लेकर के आ रहे हैं तब तो ये बात नहीं होगी, तब तो ये बात सत्य नहीं होगी, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति से बात कर रहे हैं ना। अगर भौतिकता नहीं लेकर के आ रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी, अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, अगर ब्रजवासी है तो, क्योंकि जो भौतिकता नहीं है जिनके हृदय में, ब्रजवासी हैं, बस उनके हृदय में कृष्णा का चिंतन चलता है ना। तो यहाँ पे रहना बड़ा सावधानी बढ़ा है? कोई डांट दे, कोई चिल्ला दे, कोई, अच्छा एग्जांपल दिया था, सिक्योरिटी वाले लोग चिल्लाते हैं, और भी लोग चिल्लाते हैं, डांटते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है ना? बहुत सारे कार्य करने के लिए बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, होता है ना। आप थोड़ा भी कुछ करने जाइएगा तो आपको हो सकता है डांट पड़ जाए, नॉर्मल है, परंतु उस डांट पे आप कैसा रिएक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रजवासी गलतियों को तो माफ कर देते हैं, परंतु उद्दंडता को, कोई अपने आप को ऊंचा जानने लग जाए, अपने आप को श्रेष्ठ जानने लग जाए, उसको माफ करते हुए मैंने नहीं देखा, वो गुस्सा हो जाते हैं, परंतु ऐसा मत कीजिएगा। ब्रजवासी है, अगर कोई ब्रजवासी है
तो आप नमन करने के लिए तैयार रहिए, ठीक है? चिंता मत कीजिए, आपका बुरा नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो चैतन्य चेतामृत की बात थी। तो यस, कभी-कभी कृष्णा है ना टफ डिसीजंस लेते हैं, परंतु ये टफ डिसीजंस भी हमको अच्छा बनाने के लिए होते हैं। एक पिता कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं सोच सकता। पुत्र ये सोच सकता है कि मेरा बुरा हो रहा हो, सोच सकता है, पुत्र सोच सकता है, परंतु पिता बुरा कर सकता है? नहीं। क्या पिता अपने पुत्र के लिए बुरा कर सकता है? कभी नहीं, शुद्ध रूप में नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो कभी कभी ऐसा लग सकता है, टेस्ट होता है, लगता है कि देखिए हमारे साथ कितना बुरा हो गया। एक भक्त को कभी इस भाव को नहीं लाना चाहिए, हमारे साथ बुरा हो गया। आपके साथ 10 चीजें बुरी हुई होंगी, परंतु एक भक्त को एक मार्ग मिला है, जिस मार्ग से वो अपने आप को शुद्ध बना सकता है, बाकी सभी को भी शुद्ध बना सकता है। वो अपने आप को प्रेम में स्थित कर सकता है, बाकी सभी को भी प्रेम में स्थित कर सकता है। वो अपने विकारों को निकाल सकता है, बाकी सभी के भी विकारों को निकाल सकता है। कोई एक दूसरा मार्ग मेरे को बता दीजिए। अगर आप धन कमा लिए तो बाकी लोगों को धनी बना सकते हैं क्या? आपको अपना धन बांटना पड़ जाएगा, बांटने में तो फिर कष्ट हो जाएगा, नहीं बांट सकते। आपके पास मान है तो बाकी लोगों को मान दिला सकते हैं क्या? नहीं दिला पाएंगे, कोशिश करेंगे, परंतु कोई बुरा बुरा व्यक्ति अगर आ गया, सपोज करें आप, मान है आपका, वैल्यू है, कहीं पे भी जाते हैं तो आपके बोलने से काम हो जाता है। आप किसी के पास चले गए, कैसे चले गए? गलत व्यक्ति था, परंतु आपका तो मान होता है, तो आपने क्या किया? उस गलत व्यक्ति का भी साथ दे दिया। अब जब गलत व्यक्ति का साथ दे दिया तो गलत व्यक्ति का भी मान होने लग गया। थोड़े दिन बाद पता चला ये तो गलत व्यक्ति है। उस दिन उस गलत व्यक्ति का तो अपमान होता है, आपका भी अपमान होगा, आपका भी अपमान। कोई दूसरा ऐसा मार्ग नहीं है कि आप अपने आप को भी कष्टों से निकाल लें, दूसरों को भी कष्टों से निकाल लें, कोई दूसरा मार्ग नहीं। तो भक्त अगर विपरीत परिस्थिति में अभी आ जाए तो दुखी नहीं हो सकता। एक भक्त बस इसलिए दुखी हो सकता है कि दूसरों को कष्ट में देख करके ना, एक भक्त बस दूसरों को कष्टों में देख करके दुखी हो सकता है, परा दुखा दुखी, और कोई कारण ही नहीं हो सकता। और अगर दूसरों को कष्टों में देख करके दुखी हो भी जाए तब भी वो कृष्णा के ही प्रति समर्पित रहेगा, उसका समर्पण बदलेगा नहीं। वो ये नहीं बोलेगा भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो ये नहीं बोलेगा। वो ये जानना चाहेगा कि मैं भक्तों के लिए और क्या कर सकता हूं, परंतु वो हमेशा इसी बात को जानेगा भगवान ने किया तो सब अच्छा ही किया होगा, भगवान ने सब अच्छा ही किया होगा, परंतु मैं और क्या कर सकता हूं, भक्तों की सेवा के लिए मैं और क्या कर सकता हूं, है ना? हमको भक्तों की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए सेवक का तो कार्य यही है ना, सेवा करे। सेवक का कार्य तो यही है, भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। जिसको इस बात में दृढ़ता नहीं है वो भक्ति कहाँ है? फेथलेस, कृष्णा बोलते मैं अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। जिसको कृष्णा की बातों में श्रद्धा नहीं है, कृष्णा सब सही कर रहा है उसमें श्रद्धा नहीं है, कृष्णा के कृत्यों पे श्रद्धा नहीं है, कृष्णा के शब्दों पे श्रद्धा नहीं है, वो कहां से भक्त है? अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होते कृष्णा। अश्रद्धालु जो कृष्णा की बात को न माने, जो कृष्णा के कहे को न जाने,
स्वीकार्य नहीं, यही तो श्रद्धा और क्या होता है ना। तो अगर कृष्णा दंड भी दे दें तो अगर कोई भक्त होगा सहर्ष स्वीकार करेगा, कोई बात नहीं, भगवान ने कुछ अच्छा सोच करके मुझे दंड दिया होगा, मैं दंड का ही भागी होऊंगा। भक्त अक्सर एक बात बोलते हैं, भक्तों से मिले ना, अक्सर एक बात बोलते हैं कि अगर उनका अहित हो जाए तो भक्त बोलते हैं इससे बड़ा कोई अहित निश्चित रहा होगा, आपने मुझे बड़े अहित से बचा लिया, इस छोटे कष्ट से ही निकाल दिया। अगर सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और ये सच्चा है, ये सच्ची घटना। तो होता क्या है, कभी भी किसी भक्त से मिले तो प्रणाम करते हैं, तो होता कैसा है, दूसरे भी प्रणाम करते हैं। वैष्णव कल्प वृक्ष होते हैं। अब निम्न जो रहे, जो नीचे स्तर का रहे, जो अपने आप को भक्ति में नीचा जाने, उसका दायित्व होता है सबसे पहले प्रणाम करें। और जो ऊंचे होते हैं वो रेसिप्रोकेट करें। अब रेसिप्रोकेट जरूरी नहीं है पूर्ण रूप से प्रणाम करें, है ना। एक बहुत सरल सा तरीका होता है, या तो हाथी जोड़ देते हैं या जमीन पे जो डस्ट होती है उसको अपने सर पे लगा लेते हैं, या जमीन के डस्ट को छू दिया, बस उतना भी काफी है ना। इस तरीके से प्रणाम करते हैं ना। श्रेष्ठ कोई हुआ तो इस तरीके से प्रणाम किया। अब क्या होता है कि मैंने कि नहीं, ऐसा हुआ, किसी प्रणाम किया, वो जगह था बहुत कम, जहाँ पे प्रणाम कर रहे थे वहां पे जगह बहुत कम था, अगर थोड़ा सा इधर उधर गए तो नीचे गिर जाएंगे, ऐसा। मैंने प्रणाम किया। अब क्या हुआ, वो ऊंचे भक्त थे, है ना, शुद्ध भक्त थे, और भक्ति बहुत दृढ़ता से करते, अरे कलापो थे, उनने भी प्रणाम किया, दोनों प्रणाम कर रहे था, उठा और उनके सिर पे लग गया, तब उल्टी आ गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये दूसरा स्टोरी सुना रहा था, पहले स्टोरी पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो कल ही परसों, आज की बात तो नहीं है, कल या परसों की बात, क्या हुआ कि आरती होती है, उसके बाद फिर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने के लिए फिर नीचे झुके, जैसे ही उठते हैं जोर से लगा, और ये बहुत जोर से लगा था, बहुत बहुत जोर से लगा था। हुआ क्या कि आगे कोई बैठे हुए थे और वो छोटा सा बैग बांधे हुए थे, और बैग में पता नहीं ऐसा लगा जैसे लोहा लोहा पूरा भरे हुए, है ना। और जैसे ही उठे जोर से ऐसे लगा जैसे सर, मेरे सर पे पहले चोट लगी हुई है, तो रिकमेंडेड है कि कभी भी सिर पे चोट नहीं लगनी चाहिए, बहुत जोर से चोट लगा, ठीक है। अब होता कैसा है कि मेरे साथ एक और डिवोटी बैठे हुए थे, मेरे साथ डिवोटी बैठे हुए थे, एक और क्या, मैं तो अभी भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो आगे वाले प्रभु जी को डांट रहे थे कि आपके कारण इनको चोट लग गई, आपके कारण चोट लग गई, है ना। आप ऐसा बैग लेकर के क्यों चलते हैं, ठीक है, वो डांट रहे थे। मैं उनको रोक रहा था, प्रभु जी कोई बात नहीं, लग गया, छोड़िए। तो ये तो कल परसों की बात है, परंतु वो पहले वाला पास टाइम, वो भक्त जो शुद्ध भक्त, और उनके सर पे मेरे कारण चोट लग गई, मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं क्या कर सकता था,
मुझे दिखाई भी नहीं दिया। थोड़ा सा भी अगर पता होता तो मैं बिल्कुल वैसा नहीं करता। मैं घंटों घंटे नीचे लेटा हुआ रहता। मैं क्यों उठता अगर उनको मेरे उठने से थोड़ा सा भी कष्ट हो? मुझे बड़ा बुरा लगा। परंतु उन्होंने हंसी मजाक में ऐसे ऐसे निकाल दिया जैसे पता नहीं कुछ हुआ ही ना। देखिए, प्लीज समझिए, हम कोई भी कार्य करें तो गलत हो सकता है। अब पूर्ण इंद्रियों के साथ करें तो गलती हो जाएगी। फिर से बार बार रिपीट करते हैं, गुरु को अपूर्ण इंद्रियों से युक्त नहीं जानना चाहिए, परंतु अगर अपूर्ण इंद्रियों के साथ कोई भी कार्य करे तो गलत हो सकता है। परंतु एक शुद्ध भक्त होंगे ना, वो बार बार बताएंगे मेरा कुछ ज्यादा बुरा होने वाला था, और उनके मुख से भी सेम बात निकली, आपने तो बचा लिया, आप तो मेरा पे कृपा की है, इतना छोटा सा चोट दे करके बचा लिया, छोटे से, है ना। जब हम लोग वैष्णव प्रणाम मंत्र में बोलते हैं ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, कृपा सिंधुभ्य एव च। सच में जो वैष्णव होते हैं कृपा सिंधु होते हैं, कृपा से भरे हुए होते हैं। तो मेरा बस रिक्वेस्ट एक ही रहता है, आप कृपा स्वीकारिए। तो वो कृपा करने को तैयार है। देखिए, मेरे कारण उनको चोट भी लग गया, परंतु वो फिर भी कृपा करने को तैयार है। आप स्वीकारिए तो, आप स्वीकारिए तो। हम अगर इस बात को अनुभव ही नहीं करें, उनने इतनी बड़ी कृपा करी, अगर वो रुष्ट हो जाए, एक वैष्णव दुखी हो जाए, हमें मालूम है सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि जितनी बार हो सके हम माफी मांगे उनसे, जो जो हम कर सके कि वो माफ कर दें, हमको करना चाहिए। एक वैष्णव हमको माफ कर दे, क्योंकि वैष्णव अपराध, माफी नहीं मिलती, उसकी माफी नहीं मिलती। वैष्णव स्वयं माफ कर देगा तो कृष्णा माफ कर देगा। तो अगर कुछ बुरा भी हो जाए, सोच के देखिए, इतना भी कुछ बुरा भी हो जाए तो हमको हृदय में कभी बुरा नहीं लगाना चाहिए। होने दीजिए, जो चल रहा है चलने दीजिए। तो भक्त कभी बुरा नहीं मानता, भक्त कभी बुरा नहीं मानता, ठीक है। और भक्त हमेशा ये बात को जानता है, कृष्णा तो हमेशा ही अच्छा करते हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाए। कृष्णा तो हमेशा ही कृपा कर रहे हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाए। कृष्णा तो हमेशा ही हमारा हित कर रहे हैं, हम स्वीकार नहीं कर पाए। गलती तो हमारी है, गलती तो हमारी है ना। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी, आवाज आ रही है? प्लीज जी कंटिन्यू। प्रभु जी। हे ध्रुव, भगवान नित्य है, किंतु काल रूप में वे सबों को मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। वे अव्यय हैं, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत्य शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। वे अनंत हैं, अर्थात न उनका आदि है न अंत, किंतु वे मृत्यु, समय अथवा काल के रूप में हैं। जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ और जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। शाश्वत काल भी आदि रहित है, किंतु वह समस्त प्राणियों का सृष्टा है। यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जाता है, जो अनेक अमूल रत्न बनाता है, किंतु
उसकी शक्ति नहीं घटती। इसी तरह सृष्टि अनेकों बार होती है, प्रत्येक वस्तु का पालन होता है और कुछ काल बाद हर वस्तु का संहार हो जाता है, किंतु आदि सृष्टा भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहती है। ब्रह्मा द्वारा गौण सृष्टि की जाती है, क्योंकि ब्रह्मा श्री भगवान द्वारा उत्पन्न है। शिव जी सारी सृष्टि का संहार करते हैं, किंतु अंत में वे भी स्वयं भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल भगवान विष्णु बचे रहते हैं। वैदिक स्त्रोतों में कहा गया है कि आरंभ में केवल विष्णु थे और अंत में भी वे ही रहेंगे। एक उदाहरण द्वारा हमें परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति को समझने में सहायता होगी। युद्ध पद्धति के आधुनिक इतिहास में भगवान ने हिटलर की सृष्टि की और इसके पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट की, और इनमें से प्रत्येक ने युद्ध में अनेक जीवात्माओं का संहार किया, किंतु अंत में बोनापार्ट तथा हिटलर दोनों मारे गए। आज भी लोग हिटलर तथा बोनापार्ट के संबंध में पुस्तकें लिखने तथा पढ़ने के शौकीन हैं और यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने युद्ध में इतने लोगों को कैसे मारा। प्रतिवर्ष हिटलर द्वारा बंदीगृह में हजारों यहूदियों के वध के संबंध में जनता के पठनार्थ पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं, किंतु कोई इस पर शोध नहीं कर रहा कि हिटलर को किसने मारा और मनुष्यों के इस महान हत्यारे को किसने उत्पन्न किया। भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। वे तो एकमात्र उसमें रुचि रखते हैं जो आदि सृष्टा, पालक तथा संहारक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो देखिए, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही होंगी, परंतु मेरा कार्य है कि सत्य को एज इट इज यथारूप प्रकट करूं, और जिनको जो भी कष्ट हो, जिनकी जो भी बातें हों, वो बातें अपनी रख सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर थोड़ा सा भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर जो बात बोली जा रही है, तो थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है या बात नहीं समझ में आ रही, तो आप बारंबार पूछ सकते हैं, परंतु मेरा रिक्वेस्ट यही है, मान जाइए। देखिए, सोच के देखिए, बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे जो या आप में से नहीं होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो टीवी चैनल सुबह से सुने होंगे। इनफैक्ट मेरे को एक पोल करवाना चाहिए कि क्या आज सुबह से पिछले 24 घंटे में क्या आपने टीवी चैनल सुना? तो अगर कोई टीवी चैनल देख रहा हो, अगर कोई भी एंटरटेनमेंट का कुछ भी देख रहा हो, अगर कोई भी इतिहास के बारे में जान रहा हो, अगर कोई भी पॉलिटिक्स के बारे में जान रहा हो, जब तक उसका निर्धारित कर्तव्य ना है, किसी का कोई निर्धारित कर्तव्य भी हो सकता है ना? अगर सपोज कीजिए कोई प्रधानमंत्री का पर्सनल असिस्टेंट है ना, अब अगर वो पॉलिटिक्स के बारे में ना जाने तो गड़बड़ हो जाएगा, परंतु उसको अपने अपने जो निर्धारित कर्तव्य है उसके लिए जानना चाहिए। ये नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है? अगर दुनिया का उसको जानने का जरूरत है, तो ये जानने का जरूरत नहीं होगा कि पीछे इतिहास में क्या हुआ, और पीछे इतिहास में भी जानने का जरूरत होगा, तो बाकी चीजों में क्या समय लगे वो जानने का उसका कार्य नहीं होगा, है ना? सबका कार्य क्षेत्र होता है। तो अब सपोज कीजिए किसी का निर्धारित कर्तव्य है नहीं कि उसको इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स, क्या देश दुनिया में चल रहा है वो जाने, किसी का निर्धारित कर्तव्य नहीं है। और वो क्या कर रहा है, वो अपना समय इस बात में लगा रहा है, इस बात में समय लगा रहा है कि देश में क्या हुआ,
विदेश में क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, और क्या कर रहा है? पहले ये पाप कर्म है। परंतु ठीक है, अब इसको और डिटेल रूप से जाने कि कितना बड़ा पाप है। वो ये तो कर रहा है, पर साथ के साथ ये नहीं कर रहा क्या कि भगवान के बारे में जानने के लिए समय नहीं है, हैं? भगवत चर्चा हो रही है तो वहां पे जुड़ने के लिए समय नहीं है, हैं? भगवान की बातें चल रही है तो घर वाले मना कर रहे हैं, परिवार वाले मना कर रहे हैं, पड़ोसी मना कर रहा है, चाचा जी ये बोलते हैं, मामा जी ये बोलते हैं, काका जी ये बोलते हैं। ज्वाइन भी कर लिया तो 10-15 मिनट 20 मिनट ज्वाइन कर लिया और फिर पेट दर्द और पीठ दर्द और गर्दन दर्द और नाक दर्द, आंख दर्द सब होने लग जाता है ना। सारी बीमारियां, है ना। कोई बोले कि डॉक्टर ने बोला मोबाइल नहीं देखना है ना, तो पूरा जो डॉक्टर का नियम है ना वो तभी स्टार्ट होता है, जैसे ही क्लास स्टार्ट हुआ तभी से स्टार्ट हो जाता है। क्लास एंड हो गया उसके बाद से मोबाइल आराम से यूट्यूब देख सकते हैं और भी कुछ भी देख सकते हैं, वो सब चलता है ना? और सारा नियम यहीं पे लग जाता है। उनको अगर किसी को कोई कार्य होता है ना, कोई किसी को कार्य हो तो उनको सबसे सारा दुनिया का कार्य तभी लगता है। अगर उनको यहाँ से रिलेटेड कोई काम बोल दिया जाए, प्रभु जी माता जी ये कार्य कर दीजिए, तो उनका सारा कार्य हो जाएगा। दुनिया में जितना काम बोलेंगे ना सब हो जाएगा। पर अगर बोलेंगे भगवान के लिए ये काम कर दीजिए, हैं, भक्तों के लिए कार्य कर दीजिए, वो कार्य नहीं होता। वो कार्य करने में बड़ा कष्ट होता है। ये है स्थिति, ये है स्थिति। ठीक है, तो अब ये रियल स्थिति है ना, ये रियल स्थिति। तो हम लोगों को ये सब समय का बर्बादी नहीं करना चाहिए। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला है? भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। जो भी आज आपने न्यूज चैनल में सुना हो, है ना, कल वो इतिहास बन गया, कल वो इतिहास बन गया। आपने क्या किया उस इतिहास में? आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? भौतिक जगत में अच्छा और बुरा दोनों ही बुरा है, परंतु ठीक है, एक बार के लिए मान लिया आप कुछ कर भी सकते हैं। भौतिक जगत में जो समय बिता दिया है उसमें आपका कोई योगदान था? कोई भी योगदान था? और अगर योगदान नहीं था तो समय बर्बाद ही किया आपने। क्यों किया? क्यों किया समय बर्बाद? कोई भी कार्य करके भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई भी कार्य करके समय का सदुपयोग नहीं हो रहा है, तो दुरुपयोग ही हो रहा है ना, है? जहां पे शुद्धता नहीं है वहां पे अशुद्धता ही है ना, जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे माया ही है ना। अब लोग मूर्खता में मालूम है क्या बोलते हैं? मूर्खता में बोलते हैं चलो कृष्णा तो नहीं है, हम सदुपयोग तो नहीं कर रहे, ठीक है, भक्ति करना 24 घंटा थोड़ी ना भक्ति करना होता है, ठीक है, तो हम तो कभी कभी भक्ति कर लेते हैं और बाकी समय हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। एक बात बताइए, बाकी आपने कुछ भी समय बिताया तो आपने माया का ही तो प्रसार किया ना, कि कुछ और किया? माया के ही लिए तो कार्य किया ना। कहने का मतलब आप माया के ही तो एजेंट है ना, आप माया के ही तो सेवक है ना, आप माया के ही तो दास है ना। अब बताइए इससे बुरा भी कुछ हो सकता है क्या? कोई माया का दास बना हुआ है, हम तो कृष्णा का दास बनने का प्रयास करते हैं, कोई माया का दास बना हुआ है, इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। जो कृष्णा की बातें नहीं सुनता है, जो कृष्णा की बातें सुनने में उत्साह नहीं दिखाता, जो भौतिक जगत की बातें करते रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या 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 तो होता है? नाम भी मेरे को नहीं आता तो। और क्या क्या चलता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या चलता है? व्हाट्सएप पे भी टाइम पास के लिए, कोई निर्धारित करता भी नहीं है, बस टाइम पास कर। मैं 7 PM वाली क्लास में बोल रहा था कि
हो सकता है क्लास को शिफ्ट करना पड़ जाए। मैं कुछ कोशिश में हूं कि कुछ कार्य करें, कुछ और कार्य करें। प्लीज नोट कर लीजिए, मेरे जो भी 24 घंटे, मैं सारा 24 घंटा लगाने के लिए तैयार हूं। अगर सब कोई भक्ति करने लग जाए, सब कोई भक्ति को लक्ष्य बना ले, भगवान के लिए कार्य करने लग जाए, है ना, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हो जाए, अपना पूरा 24 घंटा लगाने के लिए तैयार हूं। हर दिन 24 घंटा लगाने के लिए तैयार हूं। हर स्थिति में 24 घंटा लगाने के लिए तैयार, है ना। परंतु अभी भी ये वाला जो कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये भी वही है। हमारे पास कुछ और समय है, उसको भी कृष्णा के लिए लगा देते हैं। समय का दुरुपयोग क्यों करना, और बेटर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं, और ज्यादा और अच्छा क्यों नहीं। तो मैं तो सब कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, है ना। हाँ ठीक है, शुद्ध प्रयास नहीं है, प्रयास और शुद्ध होना चाहिए और दृढ़ता से होना चाहिए, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार। परंतु बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, है ना? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं, सच सच बताइए, क्या कर रहे हैं। क्या जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता है। और मैं उल्टा चलने के लिए भी तैयार हूं। जब मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं तो ये भी बोलने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे कुछ भी करने से आप में दृढ़ता आए, मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूं। आप कृपया बताते रहिए, आप बताते रहिए, प्रभु जी ये कार्य कीजिए, ये कार्य कीजिए, हम लोग और दृढ़ता से प्रयास करेंगे। मैं करने के लिए तैयार हूं। जो भी कार्य करने से आप लोग दृढ़ता ले आए, मैं करने के लिए तैयार हूं। अब इससे ज्यादा ओपन ऑफर और क्या चाहिए, इससे ज्यादा कमिटमेंट और क्या चाहिए। और अगर इस कमिटमेंट के बाद भी आप भक्ति करने का प्रयास ना करें तो बताइए मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया हो। और मैं तो अपना कार्य करने के लिए तैयार बैठा हूँ। मैं कोशिश करते रहूंगा, है ना। सबको ही दृढ़ता से प्रयास कीजिए और मेरे लायक जो भी कार्य रहे। अभी कल कोई भगवत गीता के लिए बोल रहा था, भगवत गीता का सेशन स्टार्ट कर दिया, मैं वो भी करने के लिए तैयार। अब डिवोटीज लेकर गई है, टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, शाम का टाइम मत लीजिएगा, शाम का मे भी 5 बजे तक ले सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कोई मेरे को बोल देना रात के 12 बजे भी क्लास लीजिए, और डिवोटीज ज्वाइन करेंगे और उनमें डेडिकेशन है, चिंता मत कीजिएगा, 12 बजे क्लास होगी। बहुत लोग है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं यूरोप, है ना, उनके टाइम जोन पे, उनकी भाषा में अंग्रेजी और कुछ नहीं आता, फ्रेंच नहीं आता, इंग्लिश हिंदी, बस दो ही भाषा आती है। ठीक है, चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और फिर किन्हीं को जो भी जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र के लिए हैंड रेज। हरे कृष्ण। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभिः च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 रामा
हरे राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण। हाँ गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। देखिए, मैं सुनाना नहीं चाहता, मैं आप लोगों को बस रियलाइज कराना चाहता हूँ। देखिए, कभी भी मौका मिलता है ना, और मैं मतलब आई वॉज रिफ्लेक्टिंग अपॉन माई सेल्फ, मैं अपने आप को देख रहा था। अभी भी मैं मैं बहुत बार प्रयास करता हूँ कि अपने आप को आईने में देखूं, क्या बोल रहा हूँ और क्या हूँ। अभी भी मैं हर बार मेरा ये प्रयास रहता है। ठीक है, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि शुद्ध प्रयास नहीं रहता, और प्रयास करना चाहिए, और शुद्धता से करना चाहिए, और दृढ़ता से करना चाहिए। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अभी भी मालूम है क्या, पिछले बहुत टाइम से लैपटॉप हाथ में उठा करके मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, लैपटॉप भी भारी है, परंतु सुबह मोबाइल को उठा करके भी दर्शन कर। परंतु समझिए, ये सब पीड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं और एफोर्ड कर लूंगा। ये कष्ट सहना है ना अगर, तो मैं और कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। अगर ये कष्ट है तो मैं और कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। परंतु आप लोग भक्ति कर लीजिए, परंतु आप इस रास्ते को स्वीकार कर लीजिए, इस रास्ते को अप्रिशिएट कर लीजिए। बहुत लोग अप्रिशिएट ही नहीं करते। क्या लाभ है, क्या लाभ है? मेरे सारे कृत्य करने का क्या लाभ है? सोच के देखिए, अगर मैं लैपटॉप उठा करके यहाँ पे क्लास लेने के लिए तैयार बैठा हूं, और अगर कुछ लोग अपने कंफर्ट के लिए या सोचे कि नहीं हमको थोड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके कारण लोग क्या कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम लीव कर देते हैं, हम नहीं सुनते हैं। बताइए, कितना कितना दुर्भाग्य है मेरा, कितना दुर्भाग्य है। ये तो कुछ वैसे ही है ना, मैं पैर दबाने के लिए भी तैयार हूं। इससे ज्यादा और क्या करें, इससे ज्यादा क्या करें? मैं पैर दबाने के लिए भी तैयार हूं, परंतु लोग बोलते हैं मेरे पैर में तो दर्द है, पर आप मत दबाइए। मुझे कष्ट से नहीं निकलना, उसलिए मत दबाइए। ये नहीं कि आप उच्च है, मुझे कष्ट से नहीं निकलना, मैं तो कष्ट लेने के लिए तैयार हूं। मैं सहर्ष कष्ट लेने के लिए तैयार हूं। ये कष्ट मुझे लगता ही नहीं। मैं तो अभी देख रहा था कि मैं और क्या कर सकता हूँ, तो मुझे याद आया, अच्छा लैपटॉप तो उठाया हूँ। प्लीज समझिए, ये सब बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। जीवन के लक्ष्य को स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, चलिए, ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, जितना शरीर में शक्ति है, सब सेवा के लिए, सब भगवान के लिए। ये सब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए, जिनकी नहीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, कृपया बताइए। परंतु मेरा बारंबार 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 बस एक ही रिक्वेस्ट है, लक्ष्य को स्वीकार कर लीजिए, उस पथ पे चलिए, लोगों को उस लक्ष्य तक ले जाइए, बस ये। और ठीक है, यस, किन्हीं की जिज्ञासा, किसी को भी कुछ भी पूछना। इनफैक्ट ये मालूम है, आप लोगों को लगता होगा ये अभी नया है। किसी समय में जब शॉप पे रहता था, आप लोगों को याद है, शॉप पे रहता था, क्लास होती थी 9 बजे, याद है? पुराने लोग, याद है? पटना, याद है? नहीं याद है? उस समय भी लैपटॉप ऐसे ही उठा करके हाथ में रोड पे चलता था, ऐसे ही हाथ में, ऐसे ही रोड पे ऐसे ही उठा करके चलता था, क्योंकि क्लास को लेट हो रहा है। जिनको याद होगा वो याद करें। उस समय भी ये कमिटमेंट नहीं था, उस समय भी यही था, जितना मेरे को याद आता है, इतना मेरे को याद आता है। मोबाइल पे आवाज नहीं आती, मोबाइल पे सुनाई नहीं देता, मोबाइल पे क्लैरिटी भी नहीं रहती, और मेरी आंखों को बड़ा दिक्कत होता है। मेरी आंखें इधर उधर मूव करती है ना, मोबाइल में मूव नहीं किया जाता, चक्कर आने और लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए लैपटॉप रहता है तो अच्छा रहता है।
यस, ठीक है। प्लीज अगर मेरा रिक्वेस्ट माने तो प्लीज दृढ़ता से भक्ति कर लीजिए, और कुछ नहीं मांग रहा मैं। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछिए, पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा। यस, कुछ भी पूछना हो प्लीज पूछिए, कुछ नहीं पूछना, किसी को कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पूछना, पूछिए ना, जो भी पूछना पूछिए, डरते क्यों है? नहीं पूछना तो फिर कीर्तन सुने, अगर पूछ लें तो अच्छा है ना? मेरा रिक्वेस्ट मानिए, मुझे कोई कष्ट नहीं दिखाई देता, मुझे बस यही कष्ट दिखाई देता है कि लोग भक्ति क्यों नहीं कर रहे। मुझे कोई कष्ट नहीं दिखाई देता, बाकी सारे कष्ट बहुत छोटे हैं, बहुत बहुत छोटे हैं। अगर आप मेरी ये बात नहीं स्वीकारे कि भक्ति क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर ये बात नहीं स्वीकार, आपको नहीं पता मेरे को कितना कष्ट होगा, आपको नहीं आइडिया। और ये कष्ट मालूम है क्यों होगा? क्योंकि मैं जानते हुए आपको खतरे से नहीं बचा सकता। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, अगर आप किसी को, कोई आपका बहुत प्रिय है ना, बहुत प्रिय, बहुत ज्यादा हृदय के करीब, बहुत ज्यादा हृदय के करीब, और वो कुछ बुरा करने जा रहा है, आपके पास मौका है कि आप उसे बचा लें, परंतु आप क्या सोचते हैं? आप बोलते हैं कि हम दूसरे कार्य में जा रहे हैं। कोई एक छोटा सा काम है, एकदम छोटा सा, और वो काम कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। अब ये जो बहुत प्रिय है आपके, बहुत प्रिय, वो क्या करता है? अपना बहुत बुरा काम कुछ कर लेता है, कुछ बहुत बुरा कर लेता है। एक बात बताइए, आप जन्म जन्मांतर हैं, जब तक आपको ये चेतना है, आप कभी भूल सकते हैं क्या? कभी भूल सकते हैं? कभी भूल जाइएगा कि हमारे कारण अगर हम बचा लेते तो बच जाता, हमने उसको कष्ट में डाल दिया, भूल जाएंगे? मेरे को भी सेम दर्द होता है, अगर कोई मेरी बातें नहीं स्वीकारे, जीवन के लक्ष्य को नहीं पहचाने, मुझे यही कष्ट होता है। आप जन्म जन्मांतर संघर्ष करेंगे, मैं कैसे भूलूंगा? मैं कैसे भूलूंगा? मैं कैसे संतुष्ट रहूंगा? है ना? आप लोग यहां तक आने के बाद भी अगर नहीं स्वीकारे, ठीक है, गलत बात है, ठीक है। चलिए, उसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया सब कोई स्वीकारिए। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, पहले राघव प्रभु जी का क्वेश्चन है, और किन्हीं का भी कोई जिज्ञासा हो तो प्लीज बार बार पूछिए। हरे कृष्णा गुरु जी, घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं और घर वाले उनकी प्रॉपर सेवा नहीं करते, जब मैं घर आता हूँ तो मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, अगर घर पे सेवा नहीं हो रही है ना, तो ये अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। इनफैक्ट लड्डू गोपाल को घर में रखना ये एकदम गलत बात है, क्योंकि हम सेवा कर नहीं पाते, और सेवा नहीं कर पाते ना, तो आप ऐसा समझिए, अगर सपोज करें घर में कोई है ना, कोई छोटा सा बालक है घर में, और आप उसे कुछ खाने को अच्छा नहीं दे रहे ना, भूखे रह जा रहा है, बताइए कितना गलत बात है ना। तो ये बहुत गलत है, अगर लड्डू गोपाल रख रहे हैं और सेवा नहीं कर रहे। लड्डू गोपाल रखना इसीलिए रिकमेंडेड कभी भी नहीं है, कभी रिकमेंड नहीं करते कि लड्डू गोपाल रखा जाए, ठीक है, परंतु बहुत लोग रखते हैं, ठीक है। अब रखते हैं तो उनकी सेवा अच्छे से होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही है तो एकदम गलत बात। अगर उनको किसी अच्छे व्यक्ति को दे दें, अगर सब कोई आ, 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 खुशी से इस बात को स्वीकार कर ले, खुशी से क्या, किसी भी तरीके से अगर स्वीकार कर ले कि अगर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को लड्डू गोपाल दे दिया जाए, अगर वो स्वीकार कर ले, हाँ? मम्मी सेवा तो करती हैं बट प्रॉपर नहीं करती, मम्मी भोग भी लगाती हैं बट प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं करती, नहीं प्रॉपर फॉलो नहीं करती हैं, तो
अपराधी हो रहा है ना, ज्यादा बड़ा बड़ा अपराध हो रहा है। तो अगर कोई अच्छे से सेवा करे तो उनके पास होने चाहिए। अगर आप ला सकते हैं तो आप अपने पास लीजिए, आप सेवा कर सकते हो तो आप लीजिए, नहीं तो जो कोई सेवा कर सकते हैं उनके पास दे दीजिए, है ना। तो इसीलिए बोलता है लड्डू गोपाल लोग ले तो आते हैं पर सेवा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो अपराध करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये हृदय रखिए कि हमको सेवा करनी चाहिए, और रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी है उनको रिक्वेस्ट कीजिए। माता है, माता को रिक्वेस्ट कीजिए, कोई और है उनको रिक्वेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट करते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए। अगर वो स्वीकार कर लें, आज नहीं स्वीकार करते हैं, बाद में स्वीकार करते हैं, तो बाद में ठीक रास्ते चलाएंगे, अभी नहीं चल रहा है। मम्मी को जितना पता है उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा करना चाहती हैं, बट जो उन्हें नहीं पता वो सब नहीं जानना चाहती है। तो ये गलत है ना, सत्य को अस्वीकार करना, ये झूठ को स्वीकार करने के बराबर है। इनफैक्ट हम लोगों ने कब तो देखा था, कल देखा था कि अगर अधूरा सत्य जाना जाए तो कभी कभी तो झूठ से भी बुरा होता है ना? वो झूठ से भी बुरा होता है। यस, चलिए। लड्डू गोपाल जी कहीं बाहर ले जा सकते हैं क्या? आजकल लोग अपने साथ लेकर घूमते हैं, इस दिस नहीं नहीं, ये एकदम गलत है। अभी देखिए क्या होता है ना, अगर छोटे से बालक है और उसको ध्यान नहीं दे सकते हैं, भीड़ में कैसे भी लेकर के चल रहे हैं, तो वो सही है क्या? नहीं है, परंतु हाँ, उनको अकेले भी नहीं छोड़ा जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे लोग हों, या फिर ऐसी जगह रखें कि उनकी सेवा करते रहें। घर पे भी रखें तो घर पे उनकी सेवा होती रहे, ठीक है, नियमित समय पे सेवा होती रहे, ठीक है। बट बहुत लोग है ना, सॉरी सॉरी, सेल्फी कल्चर है ना, सेल्फी कल्चर वाले लोग क्या होते हैं कि लड्डू गोपाल को इसलिए लेकर के घूमते हैं कि अपने सुंदर दिखे। श्याम सुंदर को सुंदर नहीं देखना चाहते, वो अपने आप को सुंदर देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो बस अपराध ही करते रहेंगे, है ना, और वो कभी भी लड्डू गोपाल की तो सेवा करेंगे नहीं। अपना मेकअप करते करते लड्डू गोपाल की सेवा करना भूल जाते हैं, ठीक है। मम्मी 5 जून को लड्डू गोपाल जी का बर्थडे सेलिब्रेशन करती है, बट श्री कृष्णा का बर्थडे तो जन्माष्टमी को होता है, अपने ही रूल्स बना लिए। हाँ हाँ, सब सब अपना 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 बना लेते हैं, सब अपना अपना कुछ भी कल्पना कर लेते हैं, ठीक है, कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। यही इसीलिए बोलते हैं, देखिए अगर कृष्णा विग्रह को प्रकट करते हैं, है ना? जैसे हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, राधा रमन जी का बर्थडे है ना, राधा रमन जी का बर्थडे होता है ना, एक डिफरेंट डे होता है, अभी गया है ना, नरसिम्हा चतुर्दशी के अगले दिन। तो राधा रमन जी का बर्थडे होता है, क्या वो ऑथेंटिक है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि कृष्णा ने प्रकट किया है, कृष्णा ने स्वयं प्रकट किया कि राधा रमन जी इस दिन प्रकट होंगे। लड्डू गोपाल जी प्रकट हुए क्या? क्या आप उन्हें लेकर के आए? प्रकट हुए क्या? तो आप किसी का भी बर्थडे कुछ भी मनाने लगे, नरसिम्हा चतुर्दशी को नरसिम्हा देव का बर्थडे मनाते, सही है क्या? बिल्कुल सही है। परंतु इस प्रकार से कल्पना के माध्यम से हम कुछ भी करते हैं। यही देखिए ना, रागानुगा भक्ति से होता, कृष्णा प्रकट करते तो शुद्धतम होता, परंतु अपने मनोकल्पना से किए तो क्या है? मूर्खता है, मूर्खता है। कि कोई भी दिन कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ है उसका? कुछ भी कर लीजिए। कुछ भी करते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, आंसर हुआ क्या? ज्ञानेश्वरी माता जी पूछ रही हैं। हिमांशी माता जी आपका आंसर हुआ, राघव प्रभु जी आपका आंसर हुआ। ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, गुरु जी जन्माष्टमी के पहले बहुत पब्लिक सब लड्डू गोपाल बाई करते हैं, फिर सेवा एक दिन ही करते हैं, बहुत गलत है।
बोले तो सुनते नहीं, क्या करें? नहीं, आप बहुत कुछ कर भी नहीं सकते, बहुत कुछ कर भी नहीं सकते, लोगों के लिए नहीं कर सकते। देखिए क्या है ना, वो जब तक प्रेम को, कोई भी प्रेम को नहीं स्वीकारेगा ना, तो सब अपराध ही करेगा, अलग अलग तरीके से अपराध करेगा, ठीक है? इसीलिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद आज के शब्द जो बोल रहे हैं ना, आज का जो कोट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग जो ग्रुप पे नहीं है, वो अगर उनका लक्ष्य शुद्ध भक्ति का प्रयास है, तो उनको ग्रुप पे होना चाहिए, मैं बस इतना ही बोलूंगा, ठीक है? अगर उनका लक्ष्य है तो, अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद आज बोल रहे हैं, यदि हम अर्च विग्रहों की पूजा को अत्यंत ऐश्वर्य एवं भव्यता से करें, और यदि सभी भक्त सदा आरतियों में भाग लें एवं विग्रह के समक्ष कीर्तन करें, तो भारतीयों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन की ओर आकर्षित करने में यह सर्वोत्तम मार्ग होगा, है ना? तो जब तक ये आकर्षित नहीं होता, तब तक तो सही मार्ग पे क्यों चलेंगे, है ना? पता नहीं लोग इस प्रकार से अपने परिवार को, अपने स्वजनों को रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते कि डेली दर्शन करने तो आ जाए कीजिए, हैं? मंदिर का दर्शन करने तो डेली आ जाए कीजिए, सुबह सुबह मंदिर का दर्शन कर लिया कीजिए, आरती होती है 7:45 पे ज्वाइन कर लीजिए, 7:35 पे भी मे बी इधर से उधर विग्रह का दर्शन कराते हैं, कभी इनका कभी उनका, ठीक है 7:45 पे ज्वाइन कर लीजिए, हाँ? 1 घंटे तक ज्वाइन कीजिए, आधा घंटे तक ज्वाइन कीजिए, देखिए, कभी कभी ब्लर आता है, ठीक है, डिवोटीज ने बताया ब्लर आता है, तो ठीक है, मेरे को और भी फीडबैक देते रहा कीजिए, बता दिया कीजिए कि आज ब्लर आ रहा था, आज ये हो रहा था, फिर उस टाइम भी चैट में लिख सकते हैं ना, लॉग आउट करके लॉग इन करके अगर कुछ हो, है ना, स्विच ऑफ स्विच ऑन करके हो, कभी कभी मोबाइल भी हैंग होता है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, उसके लिए इतना इतना घंटे तक चलना, जो भी, तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सब कोई ज्वाइन किया कीजिए, नहीं तो अर्थ विग्रह का दर्शन करेंगे नहीं, अट्रैक्ट होंगे नहीं, शब्द सुनना नहीं है, तो फिर सब गलत कार्य क्यों नहीं करेंगे, गलत कार्य क्यों नहीं करेंगे? यस, हरे कृष्णा। आंसर हुआ तो प्लीज बता दीजिएगा। ओके, राघव प्रभु जी बोल रहे हैं, एक ट्रेंड भी चलता है कि सब लड्डू गोपाल जी एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, और एंड इफ किसी से सेवा नहीं होती थी तो वो उन्हें किसी और को दे देते हैं या गंगा जी में बहा देते हैं। क्या लड्डू गोपाल को गंगा जी में बहा देते हैं? पागल है, अपने बेटे को भी गंगा जी में बहा देना, बोलिएगा, ऐसे लोगों को बोलिएगा, अपना बेटा जो होगा ना, अपनी संतान जो होगी, उसको भी गंगा जी में बहा दीजिएगा। और ये गिफ्ट करना, देखिए गिफ्ट मालूम है अधिकारी को किया जा सकता है, आपको कैसे मालूम है वो अधिकारी है? कैसे मालूम है वो अपराध नहीं करेंगे? आपने चेक किया क्या? एक बार भी समझने का भी प्रयास किया क्या कि वो सेवा करेंगे? अगर कोई सेवा करना चाहता है तो उसको सेवा मिलनी चाहिए, अगर सेवा ही नहीं करना चाहता तो सेवा क्यों मिले? कोई सेवा नहीं करना चाहता, उसको हम सेवा दे दें, बताइए कितनी बड़ी मूर्खता है। किसी को सेवा ही नहीं करनी, हम सेवा दे दें, तो ये जो गिफ्ट करने वाला बात भी है ना, बड़ा गलत है। अगर गिफ्ट हम सेवा करने वाले को दें तो फिर भी ठीक है? परंतु सेवा करना ही नहीं है किसी को, हम दे दें, ले लो, गिफ्ट लाए हम, लड्डू गोपाल गिफ्ट लाए हैं, ये क्या मजाक है ना? अभी सपोज करें, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनने में बुरा लगेगा, सॉरी, एक काम कीजिए, कोई कसाई है ना, कसाई है, उसके घर जाइए, बोले लड्डू गोपाल गिफ्ट लाए। कोई मुस्लिम जो कि कट्टर हो, है, और शास्त्रों के विपरीत कार्य करता हो, उसके पास जाइए और बोलिए कि ये देखिए हम लड्डू गोपाल लाए, इसकी सेवा कीजिए, दीजिएगा क्या? हद मूर्खता है। अब खाटू श्याम का भी ट्रेंड चल रहा है ना, तो ये सब ट्रेंड चलाते रहिए, है ना, और इसी में डूबे रहिए, ठीक है? डूबे मतलब डूब जाइएगा,
भक्ति वक्ति खत्म। जिसकी जैसी मर्जी होता है वैसा वर्शिप करता है, सही चीज नहीं जानना है। हाँ, तो फिर जब सत्य नहीं जानना चाहेंगे तो यही होगा। इसीलिए बोलते हैं आकर्षित तो कीजिए, सही के प्रति आकर्षित तो कीजिए। अब ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, आप आकर्षित कीजिएगा, वो फिर भी सत्य को अस्वीकार करना चाहेंगे, सत्य बोलिएगा तो उनको दर्द होगा, आपको ही गलत जानेंगे। ठीक है, फिर भी प्रयास तो अपना कीजिए, जो भी जितना भी जो भी प्रयास कर सकते प्रयास तो कीजिए। हम किसी एक को भी शुद्ध भक्त बना दे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। किसी एक को शुद्ध भक्त बना दिए, ठीक है, तो आप अपना प्रयास करते रहिए। लोग तो करेंगे, लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार का पागलपन करेंगे। हैं? खाटू श्याम जी को गिफ्ट कर दो, ये भूल जाते खाटू श्याम जी ने सर्वस्व कृष्णा को गिफ्ट किया था। वो कोई याद नहीं दिलाएगा कि वो बोलने वाली बात नहीं है, अलाउड नहीं है बोलना ना कि खाटू श्याम जी ने सब कुछ सर्वस्व जो भी था कृष्णा को अर्पित कर दिया था। हैं? वो नहीं बोलना है ना, ये सब सच थोड़ी ना बोलते हैं ना, ये सब नहीं बोलना। सच नहीं, सच नहीं। हाँ। अब सब अच्छा है, सब अच्छा। झूठ बोलिए, सब अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम मेरे साथ यही तो है ना, अगर मेरे पास कोई आ जाए बोले कि प्रभु जी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर, हाँ ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो ऐसा कार्य कर ले और धीरे धीरे करके सब शुद्ध हो जाएंगे। आप तो नाम जप लीजिए, बाकी सब ठीक है, जो कर रहे हैं सब ठीक है ना, अच्छा है। देखिए सब कोई बात सुनने लग जाएंगे, परंतु बोला तो दूसरी बात गई है ना। सुनने में बड़ा अच्छा लगा ना, सुनने में अच्छा लगा ना कि नाम जपेंगे, नाम जप करने से सारा अपराध से मुक्त हो जाएंगे, परंतु अपराध मुक्त नाम जप करना होता है। अपराध युक्त नाम जप करना बहुत बड़ा अपराध ही है, नाम के बल पे पाप करना। अपराध मुक्त नाम जप करना होता है। अब मैं क्या बोलूं, अपराध करते रहिए और नाम जप करते रहिए, लोग चाहते हो ही है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, कॉलोनी में सभी नॉर्मल एकादशी रखते हैं, बट अगर उन्हें महाद्वादशी के बारे में बता दिया जाए तो ऑफेंड हो जाएंगे। हाँ तो होंगे। हाँ। नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे, क्योंकि वो शास्त्र सम्मत कार्य ही नहीं करते ना। उनको बोलिए कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है, उनको समझ में ही नहीं आएगा क्या बोल क्या रहे हो। ठीक है, इसीलिए जब तक कोई भी समर्पित हृदय से कार्य ना करे तब तक भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, भक्ति करने के लिए समर्पित हृदय के साथ ही कार्य करना होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आई होप मैंने आंसर किया। चलिए कीर्तन सुनते हैं, और कीर्तन 10:35 तक सुने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा कीर्तन है, बहुत बहुत अमेजिंग कीर्तन है। हाँ, अगर देखिए ये तो टाइम है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि 10:35 तक सुना करके आप गलत कर रहे हैं, आपको थोड़ा लंबा सुनाना चाहिए। हरे कृष्णा। चलिए कीर्तन सुनते हैं, बहुत अमेजिंग कीर्तन है।